Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द ब्रिटिश रूलर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक की देन बेसिकली व्हाट हैपेंस अंडर दिस टॉपिक दैट बेसिकली तो उन्होंने कोई ऐसा इंटेंशनली दे हैडंट डन एनीथिंग intentionally for the benefit of the Indian economy. They improved so many things in the Indian economy for self-interest. खुद के लिए उन्होंने ये सारी की सारी चीजें की, बट बाय डिफॉल्ट इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। हमारे लिए हम लोग गलती से उसका फायदा उठा सकते थे। आप खुद अपने लिए कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट कि किसी एक का एक्शन जो है इट इज बेसिकली पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, इट वाज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी फॉर अस। तो अगर आप मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं, तो यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ positive externality. So whatever contributions Britishers had made here in India, we just got the positive externality. हमें उसकी positive externality, positive side देखने को मिली. Let's talk about the very first point, self-sufficiency in food grain production. So ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है क्योंकि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की हैं तो आपने देखा होगा कि I told you that farmers were not in situation to produce for themselves. They were so busy in doing agricultural, they were busy in producing those crops which are beneficial for them. For example, the cash crops, like instead of rice, wheat, and all such things, they were busy in producing cotton, jute, indigo, such kind of products. So if I talk about here self-sufficiency in food grains, so somewhere after coming near to 1947, we were able to make us somewhere to some extent self-sufficient in the case of food grain production, and it only became possible because of commercialization of agriculture, which was a which was a concept given by the Britishers only. So commercialization of agriculture initiated by British government resulted in self-sufficiency. बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन yes, to some extent उन लोगों से हमें ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिला और it is working in our favor right now. The next point is better means of transportation. Then I would like to tell you that this question was asked in CBSE 2019 or 2020, that which is the major, which is the significant contribution by the Britishers for the Indian economy. तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो दिया था ब्रिटिशर्स ने, वो था रेलवेज का। इवन कम्युनिकेशन भी था, बट सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रेलवेज को माना जाता है। आई हैड टोल्ड यू दैट 1850 में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड उसके 3 साल बाद मुंबई टू ठाणे, यानी कि 1853 में रेलवेज स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो स्टार्ट हुआ था 1853 में, इंट्रोड्यूस हुआ था कंसेप्ट 1850 में, ट्रैक्स वगैरह बिछाने में, ऑपरेशनल बनाने में 3 साल लग गए हमें। So development of roads and railways provided a cheap and rapid transport system and opened new opportunities of economic and social growth. Now basically the thing is that कि आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है तो बिकॉज ऑफ रोड या फिर बिकॉज ऑफ रेलवेज, किसी भी तरीके से अगर आप जाते हैं तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर यू टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, and the economic growth happened because of such kind of things. Somewhere the production activity increased, somewhere the market had expanded, and the social growth also happened. एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं किसी भी चीज के लिए, बी इट एजुकेशन, बी इट हेल्थ केयर, तो बहुत सारी चीजों में इसने हेल्प की। दिस इज द सेकंड पॉइंट, द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स। The third point is check on famines. Now the thing is that because India is having a very huge area, and it was very difficult for Britishers to control it. So they established, they constructed roads, they established railways in India, and these things somewhere worked in a positive manner for all those famine affected areas which were not able to get anything from any source. They were not able to get any help from any source at that time. Because of the construction of roads and railways,
all these people were able to get the supplies of essentials in the case of natural calamities. तो even though मैंने बोला है कि all weather roads were not there in the remote areas, but जहां जहां roads थी वहां पर फूड सप्लाई जो है इस नेचुरल कैलेमिटीज में, इस तरीके की चीजों में, फेमाइंस वगैरह के केसेस में, इट कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द अफेक्टेड एरियाज इन केस ऑफ ड्रॉट और बाकी सारी नेचुरल कैलेमिटीज जो है, तो आप यू कैन रीच देयर. दिस इज द थर्ड कंट्रीब्यूशन. फोर्थ कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी. It was not like that, that we were not following the monetary system at that time. Basically, when Britishers arrived in India and after 1757, when their rule started in India, then they started impacting the monetary system of exchange in Indian economy. And because of that, the barter system, you can say, to some extent, इट वॉज वैनिश्ड फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी. बिल्कुल ही गायब हो गया था. बार्टर सिस्टम हम लोग यूज करते थे, बार्टर सिस्टम गायब हो गया और मॉनेटरी सिस्टम आ गया, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी कि एक मॉनेटरी सिस्टम आना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट यू वुड बी एबल टू परचेज वट एवर यू विश टू गेट. आप बड़े आराम से जो है वो चीजें खरीद सकते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं automatically remove हो जाती हैं when an economy shifts to monetary exchange system from barter system. तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे. इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. If I talk about Indian economy, then there is a lack of administrative control in our economy. Effective administrative guidelines, or you can say the setup. Even in today's situation, the rules, the guidelines which were provided by the Britishers, we are using all such thing in today's scenario as well. You can understand how effective they were in the administrative section, in the administrative department. All those administrative guidelines which were set up by them, we are using them as a ready reckoner right now, as a straight jacket solution for all our problems. So we can simply say that the Britishers or the British government had an efficient administration system or administrative system which served as a ready reckoner politicians. एक ready रेकनर, बिल्कुल एक मतलब सिचुएशन प्रॉब्लम आई, हमें पता है इस केस में क्या करना है, एक रेडी रेकनर की तरह काम करती है. एंड द थिंग इज दैट कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी प्लानर्स हैं, उन सबके सारी चीजें काम आती हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो चाहे आप टेलीग्राम कहिए, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कहिए, आप टेलीफोन कनेक्शंस कहिए, तो ये सारे भी जो कम्युनिकेशन के जो सिस्टम प्रोवाइड किए थे, इट वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिशर्स ओनली. उनकी हेल्प से ये सारा डेवलप हो पाया इंडिया में. सो अगर आपको कभी बताना हो दैट सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या था, कम्युनिकेशन था या रेलवेज था, तो डेफिनेटली आपका आंसर रेलवेज ही होना चाहिए. फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, इट्स जस्ट अ फैक्ट फॉर यू. पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो इंडियन रेलवेज है. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते हैं, मोस्ट एम्प्लॉयड वर्कर्स, दैट इज रेलवेज इन द इंटायर वर्ल्ड. तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए whenever you are coming across the positive contributions of British rule. बट हर बार हमेशा पॉजिटिव साइड पे ही आप ना ध्यान दें. इसके साथ साथ ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, इनके साथ साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जो हैं जुड़े हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ रेलवेज, अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, आपके रेलवेज आने की वजह से हुआ क्या, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी साथ साथ आए. क्या नेगेटिव्स थे? नेगेटिव इंपैक्ट थे कि बिकॉज ऑफ रेलवेज, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज्ड. जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडियन इकोनॉमी का वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया, बिकॉज नाउ दे आर इजिली able to transport their goods and services which they wish to take from one place to another place. चाहे ब्रिटिश इंडिया लेके, चाहे ब्रिटेन लेके जाना चाहे, चाहे किसी फॉरेन कंट्री
में लेके जाना चाहें, that became very easy for them to export the raw material and to import the finished goods from Britain. Second thing, यहाँ तो रॉ मटेरियल की बात करते हैं हम, या रॉ मटेरियल की हमने यहाँ पर बात की. Now, because of railways and all such things, the market extended for the British industries. Market expansion हो गया. How? आपका रेलवेज आ गया, रोड्स वगैरह आ गई. Now you can reach to the remote areas as well without any kind of difficulty. That increased the demand for finished goods, the goods which were manufactured by British industries. तो market expansion हुआ इंडिया में because of all such things. इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर मार्केट एक्सपेंड हुआ, एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हुआ, इंपोर्ट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया. अब इंपोर्ट को आप ये कह सकते हैं कि इसी से रिलेटेड पॉइंट बता सकते हैं, बिकॉज व्हेन द मार्केट एक्सपेंडेड, द import from Britain, that also increased the because of the expansion of railways, roads, the means of communication. तो ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं यहाँ पर. पहला आप ये कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हुआ, दूसरा आप ये कह सकते हैं मार्केट एक्सपेंड हुआ, और तीसरा आप कह सकते हैं कि इंपोर्ट वगैरह जो है हमारा वहां से और ज्यादा इंक्रीज हो गया. इवन यू कैन कंबाइन मार्केट एक्सपेंशन एंड इंपोर्ट. तो आज की क्लास में ये हमने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन समझे, इसके अलावा हमने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन समझे. सो आज की क्लास में इतना ही. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जांगे क्लासेस. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम.